Hello everyone. Today we will continue our next part of French Revolution. So guys, let's start. Today we will start from intellectual cause. So first point is Age of Enlightenment or edification. Age of Enlightenment started between the period 17th to 18th century. In this period, various development took place in the field of science, philosophy and rational thinking. So philosophers are John Locke, Jean Jacques, Immanuel Kant, Montesquieu. Now we will read something about John Locke. He was born in 1632 and died in 1704. If you can see their photo, then you will remember. He was an English philosopher and physician, as one of the most influential of Enlightenment thinkers. In 1690, Locke published his two treatises of government. He argued that natural rights such as life, liberty, and property existed in the state of nature and could never be taken away or even voluntarily given up by individuals. These rights were inalienable. Now, this second person is Jean Jacques Rousseau. He was born in 1712 and died in 1778. He was also a French philosopher, writer, and composer. His political philosophy influenced the progress of the Enlightenment throughout Europe. His social contract theory says that people live together in society in accordance with an agreement that establishes moral and political rules of behavior. Social contracts can be explicit, such as laws, or implicit, such as raising one's hand in class to speak. Now we will move to next topic. This is a picture of Montesquieu. His work, The Spirit of Laws, was instrumental in creating a desire for freedom and helped to spark the French Revolution. So this is all about philosophers. So now here all the causes of French Revolution is over. Now I will start explaining you timeline which I had previously provided you. So first is State General. This is a super parliament with representatives from all states, from first and second states. There are 300 delegates each. From third state, there are 600 delegates. Second point, I want to explain you about deadlock over voting rights. Here what is deadlock? Deadlock क्या है? पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, मीन्स तीनों स्टेट को मिला के 3 वोट हुआ करते थे. तो अगर इन दोनों ने मीन्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में सहमति दे दी जाती है किसी भी डिसीजन को लेके और थर्ड स्टेट उसमें सहमत नहीं है, फिर भी उसको उसमें सहमत होना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के वोट 2 हो जाते हैं, मेजॉरिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है. इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड का बहुमत रहता था हर बार. तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वे चाहते थे कि इस बार इंडिविजुअल वोट हो, मतलब थर्ड स्टेट में 600 लोग थे तो 600 लोगों के 600 वोट. लुई 16 ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए थर्ड स्टेट ने खुद से ही अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया.
एक दिन लुई 16 ने थर्ड स्टेट वालों को मेन हॉल में आने नहीं दिया, दरवाज़ा बंद करवा दिया ताकि वह अंदर ना आ सके। तो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे पास के एक टेनिस कोर्ट में चले गए और वहाँ उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली मीन्स ओथ लिया उन्होंने वहाँ पे, और कहा हम तब तक डिसबैंड मीन्स यहाँ पे डिज़ोल्व, ओके, यानी कि भंग नहीं होने देंगे, मतलब जो नेशनल असेंबली वो डिज़ोल्व नहीं होने देंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। इस नेशनल असेंबली में कई सारे लोग जो क्लर्जी और नोबिलिटी से थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। जो इनकी प्रॉब्लम समझते थे, जो थोड़े उदारवादी थे, जो इनकी मदद करना चाहते थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। जून 1789 नेशनल असेंबली फॉर्म्ड। मई में इसकी शुरुआत हुई और जून में ये टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। जैसे ही ये खबर फ्रांस में फैला, जगह जगह किसानों ने अपनी फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हार्श विंटर सीज़न, यानी कि तेज़ ठंड के कारण फसल बर्बाद हो जाती है वहाँ पे और भुखमरी फैल जाती है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता और सामानों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, गोडाउंस में जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं वहाँ से अनाज लूटना शुरू कर दिया। कई सारे रिकॉर्ड्स जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स फ्यूडल लॉर्ड के यहाँ से चुरा के जला दिए गए। इन सब कारणों से लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गई, मतलब कानून व्यवस्था ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। जगह जगह दंगे शुरू हो चुके थे। लुई 16 यह सब देखकर उसने यह तय किया कि आर्मी बुलानी पड़ेगी और आर्मी ही इन लोगों को कंट्रोल कर सकती है। यह तय करने के बाद पूरे देश से आर्मी बुलाई गई। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, बेस्टाइल एक फोर्ट है जिसका यूज़ जेल के रूप में होता है। लोग बेस्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दूसरी चीज़, सैनिकों के हथियार भी यहाँ रखे जाते थे जैसे कि गन्स, बुलेट्स एट्सेट्रा। सो जब लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि सैनिकों की गन्स यहाँ रखे गए हैं तो उन्होंने वहाँ से वो लूट लिया, हथियार निकाल लिया और किले को तोड़ दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, उसकी एक एक ईंट उखाड़ के फेंक दी गई। इतना ही नहीं, उस वहाँ की जो दीवारों को, ईंटों को बेच भी दिया गया। उस समय का किला आज बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। उन लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वहाँ उन्होंने एक एक ईंट, एक एक चीज़ें उठा के ध्वस्त कर दी, ख़त्म कर दिया। अभी कोई भी नामो निशान वहाँ नहीं है। इस दिन को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है बेस्टाइल डे के नाम पर। सो नाउ आई एम फिनिशिंग दिस पार्ट हियर ओनली. Soon I will provide rest of the topic in next video. I hope you guys understand this video. Thank you.